خنا پرست اس قلم یسریٰ قسط نمبر 16۔ عاصم یار تو بتا کیا ہوا؟ تیری پیاری بیبی مہک آئی تھی تیرے باپ کے کہنے پر، ہم نے اس کی پوری بات ریکارڈ کر لی۔ ہوا یہ کہ تو نشے میں نیچے تماشا کر رہا تھا، تبھی عباس تجھے اوپر لے آیا۔ اس نے انکل کو کال کی تیری کنڈیشن بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا راضی کو وہیں چھوڑ کر گھر نکل جاؤ۔ عباس جانی کو یہ ہضم کہاں ہوا، وہ واش روم میں چھپ گیا پوری فلم دیکھنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد تیری جان تیری بیبی، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ راضی تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، غلطی تیری ہے۔ اتنا فریق کیوں ہوتا ہے کہ لڑکی تیرے ساتھ کے خواب دیکھے؟ عباس کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے کوئی آسرا نہیں دلایا اسے، میں نے ہلکی آواز میں احتجاج کیا۔ میرا لہجہ کمزور تھا۔ ہاں تبھی وہ اتنی پاگل ہو رہی تھی تیرے ساتھ، الگ الگ پوز بنا کر پکچرز لے رہی تھی۔ یقیناً بلیک میل کر کے شادی کرنے کا ارادہ ہوگا، ورنہ کوئی سرے عام خود کو بدنام نہیں کرتی۔ خیر عباس نے ہمیں کال کر کے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ بس میں نے جینی کو کال کر کے سارا سامان منگوایا، کیمرہ وغیرہ سب سے لگے ہم کسی چینل سے، ہم بس وہ میڈم بھی ہمیں دیکھ کر ڈر گئی۔ ہم نے سوچا اس عید کی خوشی میں پارٹی کرنی ہے تو لوٹیں اس بکری کو، اسے کچھ گولڈ اور پیسے لے کر چھوڑ دیا۔ عاصم کی بات سن کر مجھے احساس ہوا پہلے ہی مہک خود سے دور کرنا چاہیے تھا۔ یہ سچ تھا، میں ہمیشہ اسے اس کی پسند سے واقف تھا، لیکن وہ بھی سچ ہے میں خود غرض بنا۔ جب خود کسی نامحرم رشتے میں نہیں بندھا تو ایسی لڑکی سے کیوں شادی کرتا جو ہر دن ایک الگ رشتہ بناتی ہے؟ ریکارڈنگ سناؤ، میرے کہنے پر عباس نے بگڑا منہ بنا کر ریکارڈنگ آن کی۔ پلیز مجھے جانے دو، ڈیڈی کو پتہ لگا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ یہ سب میں نے راضی کے ڈیڈ کے کہنے پر کیا۔ انہوں نے کہا یہ بات بس ہمارے درمیان رہے گی، وہ لڑکی سے چھوڑ دے گی۔ یہ پکس دیکھ کر تو وہ رو رہی تھی، اور ڈیڈ کے نام سے مجھے مہک کا وہ شریف باپ یاد آیا جو ریسیپشن کے دن حجاب پر گندی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ڈیڈ کو کال کرو، دھمکی دو آپ کا بیٹا ہمارے ہاتھوں لگا ہے، اور ان سے کہو کمینہ ڈرگز لے کر ہم سے فضول بکواس کر رہا ہے۔ ساتھ مہک کی ریکارڈنگ سینڈ کرو، اور آپ کے بیٹے کو ہوش میں لا کر کورٹ میں پیش کریں گے یہ بھی کہو جلدی۔ وہ مہک کا پیسہ غریبوں میں بٹواؤ یا صحرا سجاؤ، لیکن پارٹی ہوگی تو گرینڈ پارٹی، وہ بھی ڈیڈ کے پیسوں سے۔ میرے کہنے پر چاروں نے بے اختیار مجھے دیکھا، چاروں کے چہرے پر شیطانی ہنسی تھی۔ پھر انہوں نے وہی کیا، ڈیڈ سے پیسے وصول۔ جیسے ہی ڈرائیور نے کلب کے باہر آ کر چیک سعد کو دیا، میں کلب سے نکل آیا اور ڈرائیور کے ساتھ گھر چلا آیا، جہاں میں نے ڈیڈ کو بہت کچھ باور کروایا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا وہ جان جائیں گے میری حرکت سے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے وہ ڈیڈ ہیں، میرے مجھ سے زیادہ ان کاموں میں ایکسپرٹ ہوں گے۔ ڈیڈ کے ساتھ اس فساد کی جڑ کو بھی میں نے اچھا خاصا ڈرایا، لیکن اس بے قرار دل کو قرار نہ آیا۔ وہ بے وقوف مزے سے چاقو لے کر سو گئی میری نیند حرام کر کے۔ اس لڑکی نے وہاں وار کیا ہے جہاں میں بے بس تھا، اور رہ رہ کر اس کی باتیں یاد آتی تو میں سوچتا آخر اتنا کیوں بدلا، بار بار کیوں لوٹا اس کے پاس۔ میں نے اس کا اعتبار کیا، اسے عزت دی، محبت دی، بیوی ہونے کا مقام دیا، اور وہ صرف شوہر تک تسلیم نہ کر سکی۔ میں نے پوری ہستی لٹا دی اس پر، اپنوں کو پیچھے چھوڑ آیا، اور وہ زندگی کی راہ میں مجھے اس انسان راستے پر یہ کہہ کر چھوڑ گئی لعنت بھیجتی ہوں تمہاری محبت پر۔ اس کے الفاظوں نے میرے زخمی دل کے ٹکڑے کر دیے۔ میں بدل گیا، ہاں وہی شیطان بن گیا جو اسے اچھا لیکن مجھے خوف میں مبتلا کرتا۔ پہلے سے زیادہ ڈرنک کرنے لگا، اسے میری غلیظ نظریں نہیں پسند تھی، میں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا۔ میرا بولنا اسے زہر لگتا تھا، میں نے بولنا چھوڑ دیا۔ اسے نفرت تھی میرے سرہانے سے، میں اس کے وجود سے غافل ہو گیا۔ یہ سب کیا میں نے صرف اس کی نظروں میں برا بنا جس سے وہ خوش تھی۔ مجھے فکر تھی اس کے اندر پلتے میرے وجود کے حصے کی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے بول نہیں پاتا۔ ان دنوں گھر میں سب بہت خوش تھے، مہوش تک حجاب سے بات کرتی، بس ایک میں روٹھا صنم تھا جس سے وہ غافل تھی۔ اسے آج بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نہ ہونے سے۔ میں صبح سے ایک میٹنگ میں بزی تھا، ڈیڈ نے منتیں کر کے مجھے وہاں بھیجا تھا، پوری رات اس پر کام کیا، اور اس دن پروجیکٹ ملنے کی خوشی کے ساتھ اللہ نے ایک اور خوشی سے نوازا، رحمت اور نعمت۔ 9 ماہ بعد مجھے زندگی جینے کی امید ملی جسے حجاب چھین چکی تھی۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھا، ہسپتال جا کر سب سے پہلے حجاب کی کنڈیشن معلوم کی، پھر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ حجاب آج بہت بدلی لگ رہی تھی، حسین تو وہ ہمیشہ سے تھی، لیکن آج چہرے پر رونق ہی نرالی تھی۔ میں کاٹ میں سوئے بچوں کی طرف بڑھا، انہیں پیار کیا، ساتھ حجاب کو احساس دلانا چاہا، لیکن آج بھی وہ خاموش تھی، میرے ویران دل کی طرح۔ بچوں کے آنے سے ہم میں تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی، لیکن صرف کام کی۔ وہ بلا وجہ نہ مجھ سے مخاطب ہوتی، نہ میں اس سے، زندگی بس خاموشی سے کٹ رہی تھی۔ میں کبھی آفس چلا جاتا، کبھی نہیں، ڈرنک معمول سے کم ہی کرتا، دادو آتی تو دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ 2-3 دفعہ حجاب کو لے کر میں دادا کی خواہش پر گاؤں چلا آیا۔ اسی طرح بس یہ دن کٹ رہے تھے، لیکن میری زندگی میں وہ دن آیا جب صحیح معنوں میں نے اسے یاد کیا۔
جسے یاد کیا اس دن بھلایا میں بھلا چکا تھا۔ میں غافل تھا کہ وہ اپنے ہر بندے کو یاد رکھتا ہے، ایک پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ زندگی میں آج پہلی بار آج میری روح کانپی تھی۔ اب تک مسلسل میرے کانوں میں دردناک چیخیں گونج رہی تھی، راضی مجھے بچا لو، وہ میرے ساتھ آ۔ راضی مہوش کی دردناک چیخیں سن کر میں جو نشے میں دھت لیٹا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ میری آنکھیں نشے اور نیند کی وجہ سے لہو رنگ تھیں، میں اس قدر نشے میں تھا کہ چلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا، نوکرانی سے بلیک کافی منگوائی، جس کے 3 چمچ بھر کے میں نے منہ میں ڈالے تھے۔ کافی کا یہ اثر تھا کہ میں چلنے کے قابل رہا۔ ساتھ میں نے مہوش کی آتی لوکیشن کا اپنے انسپکٹر دوست کو بھی بتایا، مجھے معلوم تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے میں اپنے ہوش گنوا دوں گا۔ میری کار ہوا کی رفتار سے تیزی سے کلب کی طرف روانہ تھی، جہاں مہوش کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے بھی میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ بمشکل میں نے پاس پڑی کافی کا ایک اور چمچ بھر کے منہ میں ڈالا۔ آج میں ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر آج میری قسمت مجھے دغا دے گی تو ساری زندگی اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ میری بہن، اس کی حفاظت مجھے اپنی اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا۔ مجھے اپنی آواز آج خود اجنبی لگی، نہ جانے کتنے سالوں بعد آج میں نے اپنے مقصد کے لیے خدا کو پکارا تھا۔ انسان بھی کتنا مطلب پرست ہے، یاد بھی تب آتی ہے جب موت کا فرشتہ ان کے بے حد قریب ہو۔ تیزی سے چلتی کار کلب کے باہر آ رکی، لڑکھڑاتے قدموں سے میں کار سے نکل کر کلب کی جانب دوڑا۔ اندر آتے ہی ایک طاہرانہ نظر میں نے پورے کلب میں دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ میرا دل آج معمول سے تیز دھڑک رہا تھا، آج بے بسی کی انتہا تھی۔ میں کسی بچے کی طرح بلک کر رونا چاہتا تھا۔ ہوش و حواس اس وقت ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میری بہن، اس کی جان، یہ سوچ کیا وہ وحشی کیا کر رہا ہوگا، یہ سوچ کر ہی میری روح لرزنے لگتی تھی۔ تبھی اوپر کی جانب آنکھیں بند کیے بس میں نے ایک لفظ عطا کیا، وہ وہی ہے جو مجھے اس قیامت خیز منظر سے بچا سکتا ہے۔ اللہ بندے، آنکھیں بند کیے میں نے اپنے رب کو پکارا۔ پھر ایک دم آنکھیں کھولتے ہی مجھے وہ منظر دکھا جسے سوچ کر میرا دل بلک بلک کے روتا۔ مہوش گلاس وال کو دونوں ہاتھوں سے زور زور سے پیٹ کر مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن یہاں سب لاؤڈ میوزک میں مدہوش، شراب کے نشے میں دھت، کسی کی آواز آتی مسلسل چیخوں سے انجان اپنے مشغلے میں مشغول تھے۔ مہوش، میں تیر کی تیزی کے سامنے بنی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ سامنے 3 رومز تھے، میں تینوں سے درمیانی دروازے کی طرف گیا، لیکن لاک ہونے کی وجہ سے ہینڈل گھماتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں تو ان گلیوں کا کھلاڑی ہوں، پھر آج کیوں قسمت مجھ سے روٹھی ہے؟ کیوں میرے ساتھ کیوں نہیں؟ دماغ کیوں آج مجھے دغا دے گیا؟ چھوڑو راضی، راضی اندر سے آتی چیخ نے میری تیز چلتی دھڑکنوں کو مدھم کر دیا۔ میرا وجود پسینے میں شرابور تھا، مجھے سانس لینا دشوار لگا۔ تبھی میرے جیب میں رکھا فون رنگ ہوا۔ بدحواسی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا۔ فوراً سے میں نے وہ چابی نکالی جسے اکثر وہ میرے دوست ہر کی لاک کرنے کے لیے یوز کرتے، جو میں نے خود بنوائی تھی۔ میں دروازے کو لات مارتا اندر دوڑ آیا۔ مہوش کے اوپر جھکا وہ شخص مسلسل اسے قابو کر رہا تھا۔ مہوش نیند کی حالت میں اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ کمینے، حرامزادے! میں کسی بھوکے شیر کی طرح دھاڑا اور اس پر جھپٹا، اسے شرٹ سے پکڑ کے مہوش سے دور کیا اور سیدھے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ میں نے اس کا گریبان سختی سے پکڑ کے جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے شرٹ کے بٹن ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ ہاتھ کیسے لگایا میری بہن کو؟ بول کتے، جانتا ہے میں کون ہوں؟ کھڑا کھڑا تیری نسلوں کو تباہ کر دوں گا، بھیک مانگتے پھرے گا، کتے بھی تجھے منہ نہیں لگائیں گے۔ کمینے، تو نے چھوا کیسے اسے؟ اپنی بوٹ اس کے منہ پر رکھے، آج میں اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ آدمی ہانپ رہا تھا، اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ چھو ہاتھ نہ لگاؤں گا میں نے۔ سائڈ پر واس پڑا، دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ آج میرے سر پر خور سوار تھا۔ وہ آدمی مجھے خود سے دور جاتا دیکھ بمشکل اٹھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا، جبکہ میں نے واس اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر وار کرنا چاہا، پر وار سامنے بنے گلاس وال کو لگا، جس سے کلب میں چیخیں گونجی۔ سب اوپر کی طرف دوڑے۔ میں مٹھیاں بھیجتا اپنا وار خالی جاتا دیکھ اسے مارنے دوڑا۔ وہ آدمی لنگڑا کر کھلے دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ میں اسے بری طرح پیٹنے لگا جوتوں سے، کبھی اس کے چہرے، سینے تو کبھی پیٹ کو زخمی کیا۔ باہر کھڑی عوام ہمیں روکنے کے بجائے موبائل لیے ویڈیو بنا رہی تھی۔ تبھی مینیجر دوڑتا اندر آیا۔ سر پلیز چھوڑ دیں اسے، ہم دیکھ لیں گے، پلیز سر، ہمارا کلب۔ بکواس بند کر، تیرا کلب منٹوں میں بند کروا سکتا ہوں اور منٹوں میں کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن کیا میری بہن کی جاتی عزت واپس لا سکتا ہے؟ بول کمینے، اسے اسی لیے بلاتا ہے سب کو، یہ کرنے کے لیے رومز دیتا ہے۔ اگر تیری بہن، میری روب در آواز پورے روم میں گونج رہی تھی، سرخ آنکھیں لیے میں اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ مینیجر کا کالر میرے
पकड़ में था। तमीज़ से बात। मैनेजर को भी गुस्सा आ गया, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी सर्द आवाज़ गूंजी, "तू लायक नहीं इसके, आउट।" मैंने मैनेजर का कॉलर छोड़कर इसे दूर धकेला। "हटो यहाँ से, क्या हो रहा है?" पुलिस भीड़ में रास्ता बनाती अंदर आई। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले नीचे गिरे आदमी को उठाने का कहा। कांस्टेबल इसे उठाने लगे, जबकि मेरा दोस्त अब्बास, जिसने फ़हीम अहमद के मामले में भी मेरी हेल्प की थी, अंदर की जानिब बढ़ा। "इब्राज, तुम फ़िक्र ना करो, इसे ऐसी सज़ा देंगे कि कभी किसी लड़की को हाथ लगाने के काबिल नहीं रहेगा।" लड़की से मेरा चेहरा तारीक हो गया। मैं बेड की जानिब दौड़ा। फटे कपड़ों में होशो-हवास से बेगाना वो सोती हुई कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी, लेकिन इसके बाजू और गले पर ज़ख्मों के निशान वाज़िह कर रहे थे कि इसे बेमौल करने की कोशिश की गई है। "इब्राज़, इसे अस्पताल ले जाओ। प्लीज़ देर ना करो। मेरे लिए कोई काम हो तो ज़रूर बताना। मेरी कांस्टेबल साथ जाएगा। तब तक मैं इस ज़लील इंसान।" अब्बास ने एक नज़र महविश को देखकर मुँह फेरा। ये इसके लिए आम बात थी। हज़ारों ऐसे केसेज़ आते, पर यहाँ वो लड़की थी जो इससे अपना भाई मानती थी। मेरी नज़रों से इसका ये अमल पोशीदा नहीं था। बस एक काम करना, इन सब के फ़ोन की वीडियो डिलीट करवाना और इन सबको हटाओ, ताकि मैं इसे अस्पताल ले जाऊँ। मेरी नज़रें झुकी हुई थी, कोई और नहीं तो अब्बास ने मेरी बहन की हालत देख ली। ये सोच मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने बेडशीट से चादर निकाल कर महविश को ढाँपा और इसे बाजुओं में लेकर बाहर निकला। कांस्टेबल ने सबको दूर हटाकर मेरे लिए रास्ता बनवाया। जाते वक्त मेरी नज़र इंजेक्शन पर पड़ी थी। मैं बच्चा नहीं था कि जान ना पाता। आधे घंटे से मैं मुसलसल कॉरिडोर के चक्कर लगाता रहा। मेरी बहन अंदर अस्पताल के कमरे में थी। डॉक्टर मुझे 15 मिनट का कहकर गए थे। यहाँ टहलते आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। "इब्राज, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन इसे हाई डोज देकर बेहोश किया गया है। तुम बताओ, तुम अब ठीक हो?" नैना, जिस से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते मेरी जान पहचान हो चुकी थी, इसने जैसे मुझे ज़िंदगी की नवीद सुनाई। "मैं ठीक हूँ नैना, मुझे मुझे महविश का बताओ, इसे कब तक होश आएगा?" पसीने से शराबू मैं इस वक्त एक बेजान सा वजूद लग रहा था। ना जिस्म में जान थी, ना अपना कोई होश। मैं जो हर चीज़ को खेल समझता था, आज खुद किस्मत के हाथों एक खेल बनकर रह गया। "शी इज़ फाइन, तुम मिल लो जाकर उसे।" मैं लरजते वजूद के साथ इसके पास आकर बैठा। वो मुझे देखकर दूसरी तरफ चेहरा मोड़ गई। "वो हमारी ही यूनी में पढ़ता है, मेरा सीनियर है। एक इवेंट में हमारी जान-पहचान हुई, फिर दोस्ती। हिजाब को वो कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे भी वो हमेशा कहती थी, इसकी नज़रें हर आती-जाती लड़की के वजूद पर होती। मैंने हमेशा इसकी बात अनसुनी की। आज वो मुझे अपने साथ क्लब ले गया। मेरी ड्रेस पर एक वेटर ने ड्रिंक गिरा दी। उसे ही साफ़ करने इस रूम के वॉशरूम में गई थी, लेकिन आज़िर ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे हिजाब की एक-एक बात याद आ रही थी। इसका कहा लफ्ज़ सच्चा था। कितनी ही देर वो मुझे आज़िर के सामने डाँट कर अपने साथ ले गई, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। वो जब रूम लॉक करके मेरे पास इसके हिलते होठों को देखकर मैं इसके अल्फाज़ समझने की कोशिश कर रहा था। मेरा ज़हन मफलूज हो चुका था। अभी तक दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जब वो कहकर खामोश हो गई, तब इसकी वीरान आँखें देख मुझे आसिम की बातें याद आती। इसके बहते आँसू मुझे मेरी गलती का एहसास दिला रहा था। मैंने फ़ोन क्लच से निकालकर फ़ौरन तुम्हें कॉल की। इसके आँसू नदी की तरह बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर रोने के तासुरात नहीं थे। वीरान चेहरे से बस नदी बह रही थी। "तुमने इसे बेनकाब किया था, आज मैं बेलिबास हो गई।" महविश के मुँह से निकले अल्फाज़ किसी नागिन की तरह मुझे डस रहे थे। वो चीखती हुई रो रही थी। बर्बाद कर दिया, बर्बाद ना भी किया, बर्बाद ना होकर भी मुझे लगा मैं बर्बाद हो गया। "तुमसे दोगला मुनाफिक कौन होगा जिसका पोर-पोर शराब में डूबा हुआ है? तुम जैसा शख्स आबे हयात से भी नहा ले तो गंदगी की बू नहीं जाएगी।" कमरे के एक-एक चीज़ मेरे कानों में चीख-चीख के हिजाब के अल्फाज़ दोहरा रही थी। मेरा दिमाग फटने के करीब था। "तुम मुनाफिक ही नहीं, काफ़िर भी हो। शट अप यू ब्लडी!" मैंने कानों पर हाथ रख लिए इससे पहले कि मैं इसे कोई गाली देता। महविश मेरी हालत देखकर मज़ीद घबराकर रोने लगी। मैंने एक नज़र रोती महविश को देखा, फिर बेबसी से हाथ बालों में फेरा। काश मैं भी इसी तरह बिलख-बिलख के दिल का हाल बयान कर पाता। मैं रोना चाहता हूँ, फूट-फूट के रोना, लेकिन मर्द कहाँ रोते हैं, वो तो सिर्फ़ ज़ुल्म करते हैं। मैं पागल हो जाऊँगी। क्या सबको पता है? कुछ देर बाद महविश की भीगी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं जो नज़रें झुकाए बैठा था, यकदम निगाहें ऊपर उठाई। महविश ने उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखा। मैं इसका इशारा समझ गया। वो इन फ़ोटोज़ का कह रही थी जो वहाँ खड़े लोगों ने ली। "किसी को कुछ नहीं पता, तुम आराम करो," मैं कहकर उठ खड़ा हुआ। "मज़ीद यहाँ रुकना मुझे ज़हनी मरीज़ बना देगा।" "राज़ी?" "महविश, मैं आज कमज़ोर दिल का मर्द साबित हुआ हूँ। मज़ीद तुम्हारे अल्फाज़ मेरा दिल बंद कर देंगे।" मेरी आवाज़ भरा गई। मैंने सुना था इंसान को इसका किया इसी दुनिया में भुगतना है, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सुना था। सबका अंजाम देखकर भी मैं उसके पास क्यों ना गया? वो बार-बार मुझे बुलाता
जाता रहा। मैं नहीं गया, डरता रहा, मकाफ़ात अमल का इंतज़ार करता रहा। नहीं, बल्कि मैं लायक नहीं था कि इसके घर हाज़िरी लगाऊँ। मैं उठ खड़ा हुआ, डॉक्टर नैना को महविश का ख़्याल रखने का कहकर मैं अस्पताल से बाहर निकला। सर्द मौसम की ठंडी हवा और झोंके मेरे वजूद से टकराया। मेरी नज़रें बेख़्याली में इस मासूम बच्चे को देख रही थी, जो बच्चा खड़ा एक आदमी के सामने रो रहा था, और देखते ही देखते वो बच्चा नाराज़ होकर आगे चलने लगा। वो आदमी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे चलने लगा। मैं भी इस शख्स के ताक़ुब में पीछे चलने लगा। मुझे लगा शायद वो शख्स इस बच्चे के लिए अनजान है। चलते-चलते वो बच्चा एक मस्जिद के पास आ रुका। वो पीछे मुड़ के इस आदमी से कहा, अल्लाह ताला से करूँगा आप अपने अब्बू मैं आपकी शिकायत। आइसक्रीम नहीं दिलाई ना? वो मुँह बसूर कर बोला तो इसका बाप मुस्कुराता हुआ इसका हाथ थामे मस्जिद के अंदर ले गया। मेरे दिल में एक अजीब-सी ख्वाहिश जागी। काश वो बच्चा मैं होता और काश मेरे डैड मुझे वहाँ ले जाते, लेकिन मैं नहीं जानता था वो इस कदर मेहरबान है कि मेरे दिल से निकली दुआ सुनेगा। वो दिन था जब बाप जैसा शफ़क़त भरा हाथ हमेशा के लिए मेरे सर पर आन ठहरा। वो आज़माता है, लेकिन आज़मा कर नवाज़ता भी बहुत है। वो बाप बेटा अंदर जा रहे थे और मैं वहीं खड़ा रहा। डर इस कदर था कि अंदर जाने के लिए एक कदम भी ना बढ़ा सका। ऐसा लग रहा था आज मैंने केजी में एडमिशन लिया है और स्कूल का पहला दिन है। मेरी मॉम मुझे क्लास में बैठाकर अकेला छोड़ के चली गई। मैं इनके पीछे रो-रो कर बिलखता रहा, सिसकता रहा, लेकिन वो मेरी सिसकियाँ सुनकर भी लौटी नहीं। कमबख्त शराबी खुद को हराम पी कर आया है और यहाँ रहकर दूसरों को भी नापाक कर रहा है। हट पड़े, खुशबू से महकता शलवार कमीज़ में मलबूस लंबी दाढ़ी मूँछों वाला वो शख्स मुझे देख हकारत से बोला और कानों को हाथ लगाकर तौबा की। मैं जो पहले ही डरा सहमा सा खड़ा था, उस शख्स के अल्फाज सुनकर खुद को एक अंधेरी खाई में घिरा हुआ महसूस किया। मेरा दिल किसी नन्हे बच्चे की तरह खौफ में मुब्तला था। एक से बढ़कर एक पाक साफ आदमी अज़ान की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आ रहा था। मुझे अपना वजूद बेमोल लगा। ना मैं इनके जैसा था, ना इनके साथ बैठने के लायक था। मुझे बेख्तियार हिजाब के वो अल्फाज याद आए। तुम्हें तुम्हें जानता है अल्लाह तुम्हें जानता है, कभी हाज़िरी एक बात बताओ, अल्लाह तुम्हें जानता है, कभी हाज़िरी तक लगाई है इसके बारगाह में? नहीं ना, अफ़सोस खुदा तुम जैसे लोगों को अपने पास बुलाता भी नहीं। गुनाह की दुनिया में रहने वाले लोग नेकी की महक से भी अनजान रहते हैं। वो सही कहती थी। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। तभी किसी मेहरबान शख्स की आवाज़ मेरी समातों में गूंजी। इसने यहाँ तक तुम्हें बुलाया और तुम उसे नाराज़ करके जा रहे हो? मैं यकदम इस आवाज़ पर पीछे मुड़ा। सामने खड़ा शख्स रहा था। मैंने सवालिया नज़रों से आंखें सुकेड़ कर उन्हें देखा। परेशान ना हो बच्चे, इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो। तुम ये बताओ, नहा कर क्यों नहीं आए? इस तरह तो नमाज नहीं होगी। मैं इनकी बात सुनकर हैरान रह गया। शायद काफ़ी देर से वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने नज़रें झुका लीं। लोग आंखें पढ़ने का फ़न भी जानते थे। मैं नहीं चाहता वो मुझे पढ़ें। मैं नमाज़ पढ़ने नहीं आया, बस वो मेरी आवाज़ मुझे खुद अजनबी लगी। मेरी नज़रें इनकी चप्पल पर थीं। आज क्या दिल से याद किया था उसे, मैंने यकदम नज़रें ऊपर उठाई। वो मुझे ही देख रहे थे। अब भी होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर सुकून था। हाँ, वो शख्स न जाने कैसे मेरा चेहरा पढ़ रहा था, या शायद मुझे यहाँ पहली बार देखकर अंधेरे में तीर चला रहा था। फिर वो काम हुआ। हाँ, मेरे कहने पर इसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बस फिर सोचना क्या, शुक्र अदा करो इसका। अच्छा चलो मेरे साथ। आज लगता है नमाज़ जमात के साथ नहीं पढ़ सकूँगा। चलो कोई बात नहीं, आज इसके बंदे के साथ पढ़ूँगा जिसकी दिली मुराद इसने पूरी की। यकीनन तुम ख़ास होगे। ख़ास लफ्ज़ पर मैंने उन्हें गहरी नज़रों से जाँचना शुरू किया। कहीं तंज़ तो नहीं कर रहे? मैं और ख़ास इतना मत सोचो, बस इसका शुक्रिया अदा करो, फिर भले अपनी दुनिया में जाना। आओ मेरे साथ। मैं वहीं खड़ा रहा। ये शख्स, ये माहौल मेरी समझ से बाहर था। मुझे हिलता ना देख वो मुस्कुराई। जिसने ज़िंदगी अता की, तुम्हारे नाम की उसे अपना आधा घंटा नहीं दे सकते? मैंने इनकी बात सुनकर अपने कदम बढ़ाए। आज भी मेरे दिल में खौफ़ खुदा ज़िंदा है, और ये इस वक़्त मज़बूत हुआ जब फ़हीम अहमद का अंजाम देखा। मैं इनके पीछे चलता रहा। वो मुझे एक गली में ले आए, जहाँ कुछ फासले पर सैकड़ों घर बने हुए थे। वो चलते-चलते एक घर के पास आ रुके, जो पर्दे से ढका हुआ था। उन्होंने पर्दा हटाकर दरवाज़ा खटखटाया। साथ एक खातून को अंदर जाने का अ, सा साथ उस खातून को अंदर जाने का कहा, जिसने दरवाज़ा खोला। आओ बच्चे, वो मुझे लिए अंदर आए। बड़ा-सा सहन था, जहाँ टेबल और कुर्सियाँ रखी हुई थी। घर पूरा बंद था। घर की छत को बड़े कपड़े से ढाँपा हुआ था। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो मुझे वहीं छोड़ सामने बने कमरे में गए और फ़ौरन से कपड़े लिए मेरे पास आए। ये लो, अपना लिबास तब्दील करो, तुम में से शराब की बू आ रही है, इस तरह नमाज नहीं होगी। उन्होंने नरमी से कहा। चेहरे पर ना गुस्सा था, ना नफरत। पहला ऐसा बंदा मिला जो हमारी दुनिया से ना होकर भी मुझे इज्जत दे रहा था। ना वो हिजाब की तरह थे, ना इस आदमी की तरह जिसने मुझे हकारत भरी नज़रों से देखा। मैंने उनके हाथ से शलवार सूट लिया और इनके इशारे पर सहन में बने वाशरूम की तरफ बढ़ा। मैं जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो बाथरूम के दरवाजे के आगे कुर्सी रखकर बैठे हुए थे। मैं पहली बार इनकी इस हरकत से चौंका, लेकिन मेरे सवाल पर चेहरे
सवाल पढ़कर भी वो मुस्कुराकर गोया हुए, अंधेरे में तो साया भी पीछा छोड़ देता है, फिर बेटी के घर में होते हुए अजनबी पर कैसे भरोसा कर लूँ? ये पहली दफ़ा था जब मैं मुस्कुराया था। बेशक वो दिल के सच्चे थे और यकीनन अक्लमंद भी। आओ नमाज़ अदा करते हैं। तुमने वज़ू किया है? वो जाते-जाते अचानक याद करने पर पलटे। जी, बचपन में दादू पढ़ाया करती थीं, नमाज़ तो याद है। मैंने वज़ाहत दी। मुझे लगा था कहीं वो मुझे नालायक ना समझे कि वज़ू करना भी नहीं आता। गुस्ल से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाज़िर जवाब हो गए हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी पीठ थपकी, फिर मुझे लिए घर के ड्राइंग रूम में आ गए। बेशक घराना आम सी गली में था, लेकिन घर को सजाने में मेहनत की थी। ड्राइंग रूम खूबसूरती से सजाया गया था और दीवार पर बड़े से फ्रेम में पहला कलमा लिखा हुआ था, और इसे देख पहली दफ़ा मेरे ज़हन में आया कि मैं कलमे भूल चुका हूँ। उन्होंने मुझे जानमाज़ दी, मेरे साथ जानमाज़ बिछाकर खुद भी नमाज़ अदा की। उनके साथ नमाज़ पढ़ के जहाँ मुझे सुकून मिला, वहीं तहफ़्फ़ुज़। कितना घबरा रहा था मैं कि वो कितनी आसानी से उन्होंने मेरी नामुमकिन सोच को बदल दिया। मैं नमाज़ अदा करके उन्हीं के इंतज़ार में बैठा रहा। वो हाथ में तस्बीह पढ़ने लगे, फिर दुआ माँगी, जो अच्छी खासी लंबी थी। माफ़ करना बच्चे, यही तो वक़्त है जहाँ खुदा से बेहद करीब होते हैं। वो उठे, अपनी जायनमाज़ तय की, मैंने भी उठकर अपनी वाली जायनमाज़ तय की। उन्होंने मेरे हाथ से लेकर टेबल पर रखी और मुझे बैठने का इशारा किया। अब बताओ इतना डर क्यों रहे थे? मुझे बैठने का इशारा करके वो मेरे सामने रखे सिंगल सोफ़े पर बैठ गए। मैं नहीं डरता, बस काबिल नहीं समझता कि इसके घर जाऊँ। मेरा कमज़ोर लहज़ा मुझे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया। क्यों? लोग कहते हैं मैं काफ़िर हूँ। मेरा सर झुका हुआ था। उनके चेहरे के तासुरात मैं देखने भी नहीं चाहता था। पता है इंसान बुरा कब बनता है? जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझे। जिसने भी कहा उसे कहना डरना इस वक़्त से जब नेकी का तकब्बुर करने वालों में तुम शामिल होगे, क्योंकि हमें काफ़िर को काफ़िर कहने का हक़ भी नहीं। इनकी बातें मुझे अपनी जकड़ में ले रही थी, लेकिन मेरा दिल इनकी बात की नफ़ी कर रहा था। मुझे लगता है ये सच है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत। मैंने उँगली से आँखों में आती हल्की नमी साफ़ की। कौन से गुनाह किए हैं? शराब पीता हूँ, नाफ़रमान हूँ, लड़कियों के साथ घूमता हूँ, उन्हें अपना आदी बनाया, लेकिन हराम नहीं। वो कहती है मैं हराम रिश्ते बनाता हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया। वो कहती है मैं बुरा हूँ, मैं नेकी की महक से अनजान रहूँगा। आब हयात से भी नहा लूँ तब भी ये गंदी बू मेरे जिस्म से नहीं जाएगी। खुदा मुझे अपने पास नहीं बुलाएगा, वो मुझ जैसों को नहीं बुलाता। मैं मुनाफ़िक हूँ, मुझे वो भुला चुका है। मेरी आवाज़ भरा गई, दिल चीख-चीख के रो रहा था। बेख्तियार एक हिचकी निकली, मेरा दिल मुझे रोने पर उकसा रहा था। इतना मज़बूत नहीं था, हर दुःख झेल ले। मेरी बात गौर से सुनो, माफ़ी गुनहगार ही माँगता है और हर शख़्स को नेकी की तरफ लौटने का हुक्म है। अगर कोई मुसलमान बने तो क्या इसे ये कहते हैं काफ़िर हो तुम, निकल जाओ इस पाक घर से? नहीं, खुदा के नज़दीक वो शख़्स अहमियत रखेगा जिसने नमाज़ की नीयत बाँधी, ना कि वो जो दूसरों को हक़ीर समझकर उन्हें इस्लाम से दूर करे। एक वाक़या सुनाता हूँ, वो रब माफ़ करने वाला है, कहता है बस तौबा करो तुम, करो तो तौबा, लौटो तो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे गुनाह आसमान जितने भी हों तो माफ़ कर दूँगा। बस तौबा करो, इससे पहले कि तौबा का मौका भी ना मिले। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में। एक इबादत गुज़ार से पूछा 99 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? उसने कहा नहीं होगी। आदमी ने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर एक आलिम से पूछा 100 कत्ल किए हैं, क्या तौबा होगी? उसने कहा बेटा क्यों ना होगी, पर तौबा पक्की हो। ये शहर गंदा है, वो शहर नेक लोगों का है, वहाँ चला जा, ये शहर छोड़ दे। आदमी ने कहा बस माफ़ी मिल जाए मैं ये शहर छोड़ दूँगा। बोरिया बिस्तरा उठाया, नेक लोगों के शहर में चला आया, लेकिन रास्ते में मौत आई। इसी वक़्त अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा। दोज़ख के फरिश्तों ने कहा हमारा मुजरिम हम ले जाएँगे। जन्नत के फरिश्ते ने कहा हमारा मेहमान हम ले जाएँगे। दोज़ख के फरिश्तों ने कहा तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएँगे। जन्नत के फरिश्तों ने कहा हमारा मेहमान तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम ले जाएँगे। दोज़ख के फरिश्तों ने कहा अभी इस बस्ती में पहुँचा नहीं है, हम ले जाएँगे। जन्नत का फरिश्ता पहुँचना ज़रूरी नहीं है, नियत ज़रूरी है। तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ भाई अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ भाई इनसे मैं करूँ, फ़ैसला करो। इस तरह के बीच में मैयत पड़ी है, सामने नेक लोगों की बस्ती है, पीछे उसका घर है, इनमें फ़ासला नापो। अगर मैयत नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाएँ, अगर अपने घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ। वो शख़्स अपने घर के करीब था, लेकिन जब नापने का वक़्त आया, अल्लाह ने नेक लोगों वाली ज़मीन को कहा कि ए ज़मीन तू सिकुड़ जबकि उसके घर के करीब वाली ज़मीन को कहा ए ज़मीन तू फैल जा।
जब फासला नापा गया, मैयत नेक लोगों की बस्ती के करीब थी, तो अल्लाह ने हुक्म सुनाया कि जाओ, ये हमारा मेहमान है जन्नत में। मेरे आंसू मेरी आंखों से किसी आबशार की तरह बह रहे थे। मैं इन्हें यकटक देख रहा था। इनकी नज़रें भी मुझ पर जमी हुई थीं। वो एक बार फिर गोया हुए, तौबा करो बच्चे, ये तौबा तुम्हारे गुनाह ऐसे मिटा देगी जैसे माँ के पेट से नया जमना हुआ बच्चा। लोगों को सोचना छोड़ दो, उन्हें खुश करना छोड़ दो, बस उसे अपना बना लो। ये फ़ानी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे गले में आँसू का फंदा अटक गया। मैं खुद को किस कदर गिरा गिरा चुका था। बार-बार इसके पाक घर में कदम रखने से डरता रहा। ये नेक इंसान मुझे पहले क्यों ना मिला? सिर्फ़ गुमराह करने वाले मिले, और मिले भी ऐसे कि जिनके आगे मैं खुद को बेमोल समझता रहा। मैं सर हाथों में थामे बैठ गया। मेरे आँसू मेरा गिरबान भिगो रहे थे। मैं बस खामोशी से उन्हें सुन रहा था। दिल चाह रहा था ये आवाज़ एक पल को ना बंद हो। एक और वाक़या सुनाता हूँ। मैं नहीं जानता किस मुसीबत में तुमने उसे पुकारा, लेकिन देख लो, तुम चाहे उसे भूलो, वो तुम्हें नहीं भूलता। एक शख़्स को कहना कि देखो, एक दफ़ा बस रब को पुकारा और उसने मदद करने में एक लम्हा ना लगाया। ये सुनो, अल्लाह के नेक बंदे जा रहे थे, सफ़र में थे कि इन्हें प्यास लगी। किसी तरह कुएँ तक पहुँचे, देखा तो पानी बहुत नीचे था। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और जूते को इसके साथ बाँधा और नीचे लटकाया, लेकिन पानी तक जूता पहुँच ना सका, तो परेशान होकर वो बैठ गए। अब क्या करूँ? तब एक हिरन आया। उसने नीचे कुएँ में देखा, पानी बहुत नीचे था, वो जा तो नहीं सकता था नीचे। इसने आसमान की तरफ देखा। "ऐ पानी वाले, बेज़ुबान हूँ, पानी पिला।" पानी उबलता हुआ ऊपर आन पहुँचा और मुंडेर के आग आग के बराबर लग गया। हिरन ने पानी पिया। हिरन की वजह से जो इंसान खड़ा देख रहा था, उसने भी पानी पिया, लेकिन जैसे ही हिरन पीछे मुड़ा, पानी वापस नीचे बैठ गया। उस शख्स के मुँह से बेसाख्ता निकला, "मैं इंसान, मेरे लिए तू पानी ऊपर नहीं आया और इस जानवर के लिए आ गया?" तब वहीं आसमान से आवाज़ आई, "तू रस्सी का सहारा ढूँढता रहा, उसने मुझे पुकारा।" एक-एक लफ्ज़ मेरे कानों को किसी सुर की तरह मीठा सुर की तरह सच्चा था। शराब हराम है, मैंने पी, लेकिन हिजाब के ज़रिए उस दिन मुझे इस गुनाह से बचाया। हर बार उस हराम को छोड़ने का इशारा किया, मैंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि आज महविश को बचाने में देरी भी हुई तो इसी हराम की वजह से, जिसने मेरा दिमाग तक मफलूज किया। अगर आज भी उसे याद ना करता तो शायद खुद से नज़रें मिलाने के काबिल ना रहता। ज़िंदगी के हर रास्ते में इसने मेरी मदद की। दिल और दिमाग की जंग में दिल को जीत दिलाई, शैतानी दिमाग को की हर चाल नाकाम बनाई। और दिल के रहता है तो और और दिल अ, आखिर इस दिल में अल्लाह रहता है तो कैसे क्यों ना जीतता। हो सकता था मैं इसके हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ करूँ। वो साथ था मेरे हर वक़्त, हर पल, बस मैं उससे अनजान बना फिरता था। मुँह धो लो, फिर अच्छा-सा खाना खिलाता हूँ। वो उठ के मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझसे हमकलाम थे। "क्या मैं आपसे रोज़ मिल सकता हूँ?" मैंने आँसू पोंछकर उन्हें देखा। मेरा लहज़ा किसी बच्चे की तरह मिन्नत भरा था। "बिल्कुल, पाँचों वक़्त इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, आ जाना, बच्चे साथ पढ़ेंगे, मुझे भी खुशी होगी।" वो बेशक अच्छे थे, होशियार भी और दूसरों का भला सोचने वाले। 5 वक़्त पढ़ते हैं, फिर ऑफ़िस मतलब जॉब कैसे करते हैं? मैंने हैरानगी से इनसे पूछा। घर अच्छा ख़ासा था, इन 5 वक़्तों में काम में कोई मशक्क़त दरपेश नहीं आती थी उन्हें। वो मंज़िल क्या मंज़िल है जो मिलकर छीन जाए, वो इज़्ज़त क्या इज़्ज़त है, वो दौलत क्या दौलत है, वो शोहरत क्या शोहरत है जिसे मौत मिटा दे। समझे, दुनिया फ़ानी है, ये दौलत भी यही रहनी, शोहरत भी, बस आमाल लेकर जाने जो आगे फ़ैसला करेंगे। हम इस दुनियावी इम्तिहान में फ़ेल हुए या पास, मैं दोनों काम सरअंजाम देता हूँ। अब तो आदत है पूरे के लिए अ, एक घं अल्लाह के लिए निकाल पूरे दिन में क्या बस 1 घंटा भी अल्लाह के लिए निकाल नहीं सकता? कितना वक़्त लगता है एक नमाज़ में, जो मैं अज़ान सुनकर उसकी मोहब्बत में भागा ना आऊँ। वो इतने पुरसुकून थे कि मुझे इन्हें देखकर हैरत हो रही थी। हर सवाल का जवाब इनके पास मौजूद था। आपके दिन का रोज़ 1 घंटा मिल सकता मुझे? ज़रूर, वो मुस्कुरा उठे। खाने के बाद मैं इनसे इजाज़त लेकर निकला। वो मेरे साथ मुझे बाहर तक छोड़ने आए। मैं चलते-चलते वहीं आ खड़ा हुआ, जहाँ कुछ देर पहले अंदर जाने से डर रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद अल्लाह के घर की तरफ चल पड़े। ना दिल में खौफ था, ना चाल में लड़खड़ाहट। अंदर आकर मैं वहीं बैठ गया, जहाँ कुछ लोग तस्बीह पढ़ रहे थे, तो कुछ सूरतें पढ़ रहे थे। मैं आज यहाँ सुकून की तलाश में आया था। मैंने सुना था मस्जिद सजदे में इंसान अल्लाह अ, इ सजदे में इंसान अल्लाह के करीब होता है। मैंने नफ़ली नमाज़ अदा की, जब तक थका नहीं पड़ता रहा, और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो बस माफ़ी की गुज़ारिश ही करता रहा। जारी है।